for us. Today's evening is all about epic stories, timeless legends, and an author whose imagination knows no limits. But before we kickstart this event, let's see the glimpse what is in store for us. I will request Palak to please play the trailer. Friends, today I'm not alone here. I have a company and I have a very cute little company. I will request, because today I'm sharing the dais with two little angels. I request my two little angels to please come here. Vedant, Vedita. Oh, come on! Okay, wait. Give each other. Good evening everyone, my name is Vedita And my name is Vega. We welcome you all to the book launch of my papa's book, The Fallen God. Love to tell stories. The stories are full of laughter, adventure, kings, princes, devas, asuras, and their great wars. The Fallen God is the second book of the Dev Asur Katha trilogy. The first book was The Builder of the Trishul. I have read both the books and I love them a lot. I hope you will like them even more than me. Thank you. से ये बेहतर तरीके से ये जॉब निभाया है संगीता. I think next event के लिए I'm going to book them because okay. This is the moment I would like to take time and introduce the brilliant mind behind this book. It is a pleasure to welcome Satyam, a graduate of prestigious IIT Bombay, an Indian Revenue Service officer by profession and a storyteller by passion. He has this wonderful ability to blend imagination with insight, making even gods and legends feel relatable. From Bengaluru's tech lanes to Mumbai's famously long commutes, his stories were born somewhere between traffic signals and daydreams. A tax officer by day and a dreamer by night, Satyam writes across adventure, thriller, mythology and crime, proving that creativity can flourish even in the most disciplined lives. He is the author of several much-loved books, including Neelkant, a gripping crime thriller, The Infinity Warrior, an action-packed adventure. His most celebrated work, The Builder of the Trishul, marked the powerful beginning of his mythological journey. And The Fallen God now takes that journey forward as the second chapter of Deva Asura Katha. With smiles, cheers, and lots of excitement, please join me in welcoming this brilliant and wonderful author. Let me tell you, I met him. He has got this 100-watt smile who can brighten up any room. With a charming personality, Satyam, it's a pleasure and an honor to be with you. Thank you, dear friends, for coming on a weekend. And considering the Mumbai traffic, I am very happy to see so many of you here. Thank you. Pleasure. Yesterday with us, I would request the phones to be on silent. अगर मेरा है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, please. Okay, it gives us an immense pleasure to welcome our chief guest, Shri Tarun Khanna, a distinguished and charismatic performer. With a career spanning over 2 decades, he has carved a rare and powerful identity in Indian cinema, especially through his mythological portrayals. He holds the unique distinction of being the only actor in the world to have portrayed Lord Shiva over 15 times, a testament to the devotion and intensity he brings to the role. His portrayal of Chanakya continues to live on in popular culture through countless reels and memes. इन्हें जानने से पहले हम definitely इनके साथ reel या meme तो बनाना ही है, especially bloggers. I'm telling you all, okay? His recent acclaimed theatrical performance in Hamare Ram once again showcases his spiritual gravitas as Lord Shiva. Currently, we are also witnessing his powerful screen presence in Akhanda 2,
which is successfully running in theatre. Please join me in giving a warm and hearty welcome to our chief guest, who is an accomplished actor, iconic performer, and a true torchbearer of all impactful content, Tarun Khanna. Tarun, it's an honor. Basically, they say that if you cannot write well, you cannot think well, and if you cannot think well, then your thinking will be done by others. Do you want that? That your thinking should be done by other people? No, we all want to think for ourselves. So there is a writer in all of us. But to become a writer, to write a book, especially when you have another career, it takes a lot of courage. It takes a lot of guts. And congratulations to Satyam. This is his 4th book. It's no mean achievement. But then again, somebody said, I'll tell you who said this. Somebody said that the best stories come from those people whose bread and butter is not dependent on that. Right. So Satyam's bread and butter is not dependent on writing. That is why he keeps on churning these beautiful stories, and he's telling us these stories. This is, by the way, said by Oscar Wilde. So, not my book. I'm just quoting him. But that's the beauty of writing, We all can delve into some brilliant minds and, intelligent people's minds through writing. It's very, very fortunate thing that we get to delve into their minds. Whatever experience they have, they write it in a book, and in just a span of say 10 to 12 days, when we read that book, we delve into their minds and we get to know what actually, will take at least a few years for us to know. So I would request all of you who are sitting here and all of you who are listening to me through various mediums to take up writing. We need to take up writing. It's a very, very noble profession. It's a very good profession, and it's a very good hobby also. Every child, I loved the way these children introduced their papa and they all welcomed you. Everybody should actually take up writing. Writing is a very, very nice hobby, and it's a very nice profession also. I'm sure Sir will tell you about that. Absolutely. Thank you so much, Tarun. And secondly, my film Akhanda is still in the theatres. It's a Telugu film, Akhanda 2. हिंदी में भी है भाई, तो प्लीज जाकर देखिए। तो तेलुगु में आप जरूर हमें कुछ सुनाएंगे ना? कुछ तो सीखा ही होगा। कुछ नहीं, मैंने I spoke almost 18 pages of dialogues in Telugu. Oh my God. So anybody knows Telugu over here? I know Tamil and Malayalam. नहीं तो फिर अच्छा मैं बच गया। So I'll tell you. At the end of the scene, I won't tell you much. Otherwise, it will take the charm out of that scene. So I say, O Thalliku Sthunavaram, Na Thalliku Sthunavaram, Amaikya Prapti Rastu. Oh my God. So I won't tell you what is the meaning of all this. You go and watch it. By end of the session, I'm sure we'll get the translation of this. Because, okay, दोस्तों आज हमारे बीच में we also have Lead Star के CEO, जिनसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि please come on the stage, and I would like Swaroop Satyam to please Swaroop and Satyam to felicitate. असली यही शिव हम सब में है। सिर्फ ये है कि हाँ, हम सबके दिल में शिव रहते हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। असली शिव ये। तो आपके कैरेक्टर में इतना जो लगाव है ना, उसी से पता चल गया कि आप शिव जी बन गए। Do it together.
I knew him through friends, and then he met me for his last book, The Wielder of Trident, Wielder of Trishul. So we were exploring many options कि उसका क्या कर सकते हैं उसको. We want to take it on celluloid, but to take a book to cinema is not a very easy thing today, and the kind of budget and the kind of backing required for a project of that magnitude, it's not something which you can achieve in just a short span of time. You need backing of a big studio, so I was just trying to do all those things, and we are still working on that, and very soon we'll give you a good news about first Wielder of Trident and then Fallen God. Amazing. We'll be waiting for that. हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जब उठाया है, द फॉलन गॉड, इट्स ट्रिलॉजी, और इतना वक्त मिल जाता है. ट्रिलॉजी इज वेरी इंटेंस, उसकी डेप्थ काफ़ी गहराई, मतलब इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एज सच. और आपने पहले किताब लिखी थी, आई थिंक तकरीबन 4 साल पहले. एंड व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम अप विद दिस नाउ? आई थिंक हेलो आई थिंक वॉर के ऊपर बुक लिखना, स्पेशली जहाँ पे गॉड्स हो, वहाँ टाइम तो लगता है. तो एक्चुअल क्या है कि जब हम लोग बुक स्टार्ट करते हैं, एज एन ऑथर व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग अ बुक, तो मोस्टली स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे माइंड में क्लियर होती है कि ये स्टार्टिंग होगी, ये एंडिंग होगी. जो मिडिल का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर का डेवलपमेंट, उनकी जर्नी, तो स्टार्टिंग एंड से ठीक से कनेक्ट होनी चाहिए, तो वहाँ टाइम लगता है सबसे ज़्यादा. तो दैट इज़ वाई सेकेंड बुक तो सम टाइम फॉर मी, इसको लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि जो फाइनल सब्र का फल मीठा होना चाहिए, कि जो फाइनल प्रोडक्ट आए वो अच्छा होना चाहिए. तो दैट इज़ वाई इट टुक सम टाइम. But as I said, it's very intense. Like ट्रिलॉजी लिखना इतना आसान नहीं है. आपका कंपैरिजन रामायण, महाभारत इन सब सब्जेक्ट से होता है, तो इतना आसान है क्या ट्रिलॉजी लिखना? दैट इज व्हाट मैं जानना चाहती हूँ. आप शायद जानती नहीं है हम क्या करते हैं. हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, Okay. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, सेक्शन, नॉट विथस्टैंडिंग, इतनी चीज़ें होती हैं, इतने इंटरप्रिटेशंस की माइथोलॉजी इज एक्चुअली ईजियर. तो ये एक्चुअली ज़्यादा रिलैक्सिंग है टू राइट अ माइथोलॉजी, और टू राइट अ ट्राइलॉजी, एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी, वो ज़्यादा रिलैक्सिंग और ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू व्हाट वी डू. अभी मुझे समझ आ रहा है. और तरुण जी तो ऐसे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सबको राइटिंग पिकअप कर लेनी चाहिए. आप सुना उनका जवाब देखो. See, I did not say that you should become a writer so that your books get or your work gets published. You also all should try to write so that your thoughts can be penned down. It actually helps you become a better human being. I'm sure Satyam also will agree that his writing has actually helped him become a better person per se. Not only in his professional life, in his personal life also. Everywhere. It really helps. Yes, I totally agree. क्योंकि जितना टाइम आप सोचने में और कैरेक्टर्स में इतना स्पेंड करते हैं, उतना आप खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो उससे एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, और आप कैरेक्टर के साथ एक जर्नी, आप एक और लाइफ जीते हो पैरेलली. तो आप समझते हो कि आप जो लिख रहे हो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस में भी करना चाहिए, जो आप वहाँ प्रीच कर रहे हो बुक में, वो रियल लाइफ में भी करना चाहिए थोड़ा. तो I'm in complete agreement. सत्यम, just so that हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ चले इस फुल इवेंट में, आप हमें मोटा विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स जरा बताइए ना किताब के कैरेक्टर्स और इनके बारे में, so that they know what it is, where are we going. So this book is a देवासुर कथा. It's a trilogy. तो फर्स्ट बुक का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी. तो ये स्टोरी सेट है एक ध्रुवलोक नाम के प्लैनेट पे, जहाँ पे लॉर्ड शिव जी का त्रिशूल जो है वो उन्होंने रखा है वहाँ पे, कि किसी दिन जब कोई वर्दी एक आएगा विल्डर, ही विल लिफ्ट इट. तो हमारी स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी कर्सेस, बून्स और ओथ और काफ़ी कुछ है, लेकिन जो उसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरीज में कवर्ड है, वो है, एक है विराट, जो कि एक राजा का बेटा है. ही इज़ द प्रोफेसाइड प्रिंस, कि इस पर एक प्रोफेसी हुई है कि ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू वील्ड इट. तो उसके ऊपर इसका एक प्रेशर है, मतलब पूरी लाइफ वो उस प्रेशर में जी रहा है कि मतलब उसको इवेंचुअली वील्ड करना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आने वाली है, तो वो उस प्रेशर में है. एक दूसरा कैरेक्टर है वृत्र, जो कि जिसकी फैमिली के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है, तो वो उस इंजस्टिस के लिए वो जस्टिस सीख कर रहा है, सीकिंग रिवेंज, बेसिकली उसको रिवेंज चाहिए, तो उसका मोटिवेशन वो है. तीसरा हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है लक्ष्य. तो लक्ष्य एक कॉमन सोल्जर है,
वो अपनी लाइफ, अपने एफर्ट, उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसका एम्बिशन है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करे और एक बड़ी पोजीशन हासिल करे। तो तीनों के तीनों त्रिशूल को चाह रहे हैं, लेकिन त्रिशूल तो शिव जी का वेपन है, वो तो सब कुछ देखता है, तो वो तो सिर्फ धर्म के साथ चलेगा, जिसके पास धर्म है वहीं पे त्रिशूल जाएगा। तो फर्स्ट बुक में जैसी स्टोरी बनती है, एट द एंड लक्ष्य जो है ये एंड्स अप विल्डिंग द त्रिशूल, लेकिन अब उसका पूरा फॉल आउट है, बिकॉज एक कॉमन आदमी ने एक त्रिशूल को लिफ्ट कर लिया है। नाउ इस पे हाउ द किंग्स एंड हाउ दोज पीपल विल रिस्पॉन्ड। पूरी सेकंड बुक जो है उसका फॉल बैक है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, लोगों को चॉइसेस करनी पड़ रही है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जब भी आप कोई कहानी या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो डू यू लुक आउट फॉर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, इमोशंस, और व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कंसीडर फॉर अ रोल? इम्पैक्ट। इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इम्पैक्ट। उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को, रुतबे को, शक्ल को, ज़मीन को, जायदाद को, लेकिन इम्पैक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट है वो ही सब कुछ करता है, वही राजा है। राजा है तो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट नहीं है तो वो राजा नहीं है। तो इम्पैक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, आपके इस पिछले सवाल का मैं थोड़ा सा एक और बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि धर्म की बात आपने इनसे पूछी। बहुत लोग ये बात भूल जाते हैं कि धर्म के नाम पर जिन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा विलीफाई करते हैं, जिन्हें बहुत विलेन बनाकर रखा जाता है, असुर, दैत्य, राक्षस, ये सब देवताओं के फर्स्ट कजन्स थे। ये सब के सब, इनकी जो माताएं थी, सगी बहनें थी, सब की सब। तो दिति अदिति के ही बच्चे थे ना। दिति के बच्चे दैत्य बन गए, अदिति के बच्चे देवता बन गए। सगी मौसी के बच्चे हैं। अब सगी मासी के बच्चे हैं, क्या ऐसी वजह रही होगी कि इन लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था? इन लोगों को देखिए, अच्छे घर में बैठकर धर्म की बात करना बड़ा आसान हो जाता है। मैं एक एयर कंडीशन कमरे में बैठा हूँ, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं धर्म की बातें बड़े मज़े में कर रहा हूँ। लेकिन यही बात अगर मैं किसी झोपड़े में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में खाने के वादे हैं, तब मेरे लिए धर्म की बात करना आसान नहीं होगा। तब वही लोग जाके चोरी चकारी करेंगे ना दुनिया में, वही जाके दूसरों की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जो असुर करते थे बेसिकली। तो किसी ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की है कि असुरों के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो वो हमेशा यही करते रहते थे। कामधेनु उन्हें नहीं मिली, स्वर्ग उन्हें नहीं मिला, हर अच्छी चीज देवताओं को ही क्यों मिली? कभी किसी ने ये सोचा कि देवताओं का जो राजा है इंद्र, कोई एक अच्छा काम बता दीजिए जो इंद्र ने किया। कोई एक अच्छा काम, आई चैलेंज यू ऑल, कोई एक अच्छा काम। आप सबने अहिल्या का नाम सुना होगा, गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या के जीवन में सबसे बड़ा राक्षस कौन था? इंद्र। लेकिन हम इंद्रासुर तो नहीं बोलते। आपके जितने भी मंत्र हैं, घर की पूजा हो, बच्चा पैदा हो, शादी हो, किसी की मृत्यु हो, कोई भी काम हो, 75 बार जो आपके पंडित जी आते हैं अपने मंत्रोच्चारण में इंद्र का नाम लेते हैं। हमने सब जगह इंद्र का ही नाम देखा है, लेकिन काम अच्छा इंद्र ने एक नहीं किया है। लेकिन कोई वजह होगी कि उसको विष्णु ने, ब्रह्मा ने और महादेव ने देवताओं का राजा बना दिया। सो कई बार ऐसा होता है कि जो क्लास का सबसे निकम्मा बच्चा है उसी को मॉनिटर बना दिया जाता है। तो शायद इंद्र के केस में वैसा है। लेकिन वही इन्होंने बड़ा सही कहा कि ये चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं। जिधर से हम देख रहे हैं हमें लगता है सारा पाकिस्तान गलत है, और जिधर से पाकिस्तान वाले बेचारे देख रहे हैं उन 500 टेररिस्ट लोगों को छोड़ दो, बाकी के 25 करोड़ भी तो रहते होंगे ना पाकिस्तान में, उनको लगता होगा सारे इंडिया वाले खराब हैं। तभी तो एक आध हवाई जहाज गिरने पर वो पूरे दुनिया निकल पड़ी कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें भी पता है जीते नहीं है, वो बेचारे गरीब इतने हैं कि परेशानी में उन्हें लग रहा है कि चलो यही खुशी मना लेते हैं कि इंडिया से जीते। एवरीबडी हैज अ पर्सपेक्टिव। वो पर्सपेक्टिव जो है समझना बड़ा जरूरी है। हम लोग सिर्फ अपने ही लिहाज से, वो कहते हैं ना कि वी आर वेरी गुड एडवोकेट्स फॉर आवरसेल्व्स बट वी आर वेरी पुअर जजेस फॉर अदर्स। तो कई बार दूसरों का भी पर्सपेक्टिव सोचकर देखना पड़ेगा हमें। तो ऐसी किताबें जो हैं जो हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव भी दिखाती हैं कई बार, तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सो मच। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारे किरदार आपने इस किताब में लिखे हुए हैं, एवरीवन हैज बीन वेल जस्टिफाइड। फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया, वृत्रा, विराट और लक्ष्य।
विराट इज द सन ऑफ अ किंग, तो प्रिंस है, तो उन्हीं को वो त्रिशूल मिलना चाहिए। दैट इज द प्रथा। जो वृत्र है वो असुर है, हिंदी को बचा लेना, बिल्कुल, कवर एकदम कर बराबर देना। और लक्ष्य जो है वो आम सोल्जर है, बट त्रिशूल उसी को मिलता है। ओके, कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो आपको बहुत ही जिससे यू हैड टू, इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर यू टू राइट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, और आपने तीनों कैरेक्टर को एक ही जैसी अहमियत दी है? सो बीइंग असुर, इनफैक्ट विलन को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, तो आपने विलन को भी बकायदा काफी पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये तो विलन नहीं है, इससे नफरत नहीं हो सकती है, उस पर भी बताइएगा। सबसे पहले मैं आपका विलन वाला क्वेश्चन आपसे एक्चुअली जिन्होंने फर्स्ट बुक पढ़ी ना, मुझे फीडबैक आया कि वृत्रासुर के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो एक्चुअली वो उससे सिंपैथाइज कर रहे हैं। दे डोंट फील कि इनजस्टिस, मतलब उसके साथ सही में इनजस्टिस हुआ और जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो मतलब हमें जो लगता है कि जो विलन है एक्चुअली ऐसा नहीं है, जैसा तरुण ने भी कहा कि देव और असुरों की जो लड़ाई है आ रही है, चलिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि देव अच्छे हैं और असुर बुरे हैं। पहले ऐसा बिल्कुल सोच नहीं थी, जो हमारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा ही है कि प्रहलाद भी असुर का ही बेटा थे, तो लेकिन वो अच्छे थे। महाबली जी हैं वो भी अच्छे थे, तो मतलब असुर भी अच्छे हो सकते हैं, देवास भी बुरे हो सकते हैं। इंद्र ने काफ़ी बुरे काम किए, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इस बुक में शायद थोड़ा सा उनका एक अच्छा पार्ट आया है। तो अब जैसे वृत्र है, वृत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप लोग ज़्यादा सुना नहीं होगा इनके बारे में, वृत्रासुर के बारे में, लेकिन वृत्रासुर एक लौता नॉन ड्रैगन इन हिंदू माइथोलॉजी है, इसको कहा जाता है। सरपेंट भी बोलते हैं, कई लोग ड्रैगन भी बोलते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि वृत्रासुर इतना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड था कि मतलब उसने गीता लिखी है, गीता उनके नाम पे है, वृत्रासुर गीता करके है, तो मतलब ही वाज सच स्पिरिचुअली एनलाइटेंड मतलब। और मतलब वो आप देखेंगे कि बुक में वो गलत काम करने से पहले कई बार सोचता है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। Been a very dear colleague. I am very proud that his first book was when we were working together. After that, he's come a long way. Fourth book today. All the best. Looking forward to many more. And fantastic choice of chief guest. I have like my passion is sports and movies, TV and all. I have met many sports stars. One of the most charming is MS Dhoni. I have met many TV stars and film stars. He is one of the most charming, and both he and Dhoni have quite a similarity. Wow. And now my question: why the choice of the name, the Fallen God? में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द रियल वॉर इज कमिंग, क्योंकि उससे पहले गॉड्स आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अब कोई तो जीतेगा कोई हारेगा, वो इसलिए है। और आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हु इज द गॉड हु फॉल्स। Thank you. My name is Vicky, and I want to ask you. Can I hear? Is there any question or a message you want to stay with the readers after they read this book? Do you have anything in your mind that definitely this one will be stay with them? आई थिंक जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जो हमारे माइंड में अच्छे थे, तो एट द एंड ऑफ दिस बुक रीडर्स विल बी लेफ्ट विद क्वेश्चन कि क्या सही में देवास सही थे, असुर गलत थे, या फिर दोनों की कुछ कुछ गलती थी, या बेचारे वो सर्कमस्टेंसेस के मारे थे, मतलब उनकी जो चॉइसेस हैं उनकी वजह से वो डिफाइन हुए। तो ये एक रीडर्स को क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब एटलीस्ट आई चैलेंज दिस नोशन कि असुर बुरे थे और देवास अच्छे थे, तो यू गेट टू सी बोथ द साइड्स। Thank you so much, sir. Why do you think that right now, like modern, Gen Z is even love to this mythology and all? Gen Z, sorry, Gen Z Loves what? mythology also. They love. Yes. They love mythology. Yes, yes. Why do you think that even modern India? Man, the word mythology comes from the word myth. Myth का मतलब होता है भ्रांति। तो राम भ्रांति नहीं थे, कृष्ण भी भ्रांति नहीं थे, और 12 ज्योतिर्लिंग है मतलब शिव भी भ्रांति नहीं थे, ये थे। तो ये तो हिस्ट्री हो जाती है। हिस्ट्री इज समथिंग विच हैज अ रिटन रिकॉर्ड। वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दीज थिंग्स, यानी 15वें पेज के बाद सीधा 60वां सफ़ा आ जाता है, पेज के 45 गायब होगा। इस वजह से हम लोगों ने अंग्रेज़ों की सिखाई हुई अंग्रेजी में इसे माइथोलॉजी वर्ड एक्सेप्ट कर लिया, whereas this is actually our history। तो धीरे धीरे मैं ये इट्स अ वेरी स्मॉल
endeavor of mine to eradicate this word mythology from our vocabulary, because we don't need this word. This is history of our country and proud history. और शिव किसी एक धर्म के नहीं है, राम किसी एक के नहीं है, कृष्ण ये सबके हैं। जितने 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी हम हैं और जो बाहर भी रह रहे हैं वो उन सबके हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे बच्चे हैं आज के जेन ज़ी, जिनके लिए आप कह रहे हैं, हमारे तो बच्चे हैं, बाहर से पड़ोस से तो लाए नहीं हम। अब उनके अंदर वैल्यूज भी हमारी हैं, और हमारी जो वैल्यूज है ना, आप यकीन मानिए इतना इरोड होने के बावजूद भी उनमें इतनी ताकत है कि आज भी खड़े हुए हैं हम लोग। आज भी वेस्ट हमारी तरफ देखता है कि इंडियंस का जीने का तरीका क्या है। आज भी वो लोग योगा करने के लिए आ रहे हैं, क्या हम लोग उनका कुछ करते हैं? नहीं करते। वही लोग हमारी चीजें अपना रहे हैं, हम उनकी चीजें नहीं अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति में इतना दम है सनातनी में कि हमारे को कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। और उसी वजह से हमारे जो बच्चे भी हैं, जेन ज़ी हो या उसके बाद वाले भी एक आए ना, मिलेनियल्स, अल्फा भी, बीटा गामा भी आएंगे, वो सब भी आएंगे, तो भी वो उन्हीं रूट से ही जुड़े रहेंगे जो हमारी रूट्स हैं। हमारी रूट्स उनको अपना रंग दिखाकर ही रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आज हमारे बच्चों को, कई लोग मुझे बोलते हैं आपके टीवी सीरियल्स में कहानी जो है वो सही नहीं है। भाई साहब, कहानी पे मत जाइए, आप इस बात पर जाइए कि बच्चे को एटलीस्ट पता है कि कृष्ण कौन थे और हनुमान कौन है और रामचंद्र जी कौन है। नहीं तो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन्हीं में ही फंस के रह जाओगे आप लोग। सुपरमैन की सारी पावर्स तकरीबन हनुमान जी वाली हैं, और हनुमान जी तो उससे भी बड़े हैं। उनके पास में अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी, सुपरमैन के पास में नहीं है। मैंने पूरा इस पर रिसर्च किया कि सुपरमैन क्या क्या कर सकता है और हनुमान जी क्या क्या कर सकते थे। तो सुपरमैन बहुत पीछे है हनुमान जी से। तो जब हमारे बच्चों को लगता है कि यार हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, they automatically feel, and then we have some of the most interesting characters. आप देखिए the most fashionable god कृष्ण जी, इतने गुड लुकिंग, इतने स्मार्ट, 80 साल की उम्र में भी 20-20 साल की लड़कियां जो थी उनकी फैन थी। किसी ने कभी रियलाइज नहीं किया महाभारत के टाइम में वो 78 ईयर्स हो, कभी किसी ने ये रियलाइज नहीं किया होगा। लेकिन जो छोटी छोटी उम्र की सब लड़कियां होती थी किसी भी परिवार की, कृष्ण को घेर लेती थी। उस जमाने के ऋतिक रोशन, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग गॉड हमारे शिव जी, अल्टीमेट ब्यूटीफुल गॉड, हमेशा गुड लुकिंग दिखते हैं, बॉडी है उनकी। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ पर भगवान इतने करेक्ट हैं हमारे भगवान कि और कहीं पर आपको ऐसे नहीं मिले। इस वजह से हमारे बच्चे जो है वो ये देखते हैं, जब ऑटोमेटिकली दे गेट ड्रॉन टुवर्ड्स इट। गणेश जी हैं, द क्यूटेस्ट गॉड है वो, हनुमान जी हैं। और पहली और आखिरी बार दुनिया में ऐसा हुआ कि कोई अपनी भक्ति से भगवान बन गया, वरना भगवान तो शिव जी भगवान है, रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है तो भगवान है, कृष्ण भगवान है क्योंकि अवतार है। हनुमान जी तो सिर्फ भक्त थे राम के, लेकिन भक्ति में इतना ऊंचा उठ गए कि भगवान बन गए। तो पता चलता है कि भक्ति में कितनी पावर है। ये मैसेज ये है, तो बच्चों को दिखता है। सर, आपके लिए क्वेश्चन है। आई एम अ वेरी बिग शिव भक्त। हम लोग बचपन से वी डन शिव हवन्स एंड शिवरात्रि पे वी फास्ट, वी डू ऑल द थिंग्स एंड दिल से भी करते हैं। व्हाट इरिटेट्स मी इज दैट पीपल से कि चिल्लम पीते हैं एंड यू नो ये एक शराब होती है और ये सब। आस्किंग यू, somebody who's played शिव जी over decades, how to combat this without getting angry and being शांत? Because मेरी तो फिर जाती है। कि शिव जी सिर्फ हमारी अर्थ के गॉड हैं, कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं इनके गॉड हैं, कि मिल्की वे जो आकाशगंगा हमारी उसके गॉड है, कि उसके अलावा वाली जो इस साइड की मिल्की वे 50,000 होंगी उनके गॉड है, कि उसके बाहर वाली की सब। अब हम लोग बैंड्रा की छोटी सी एक दुकान में बैठे, अब सोचो कितना बड़ा बैंड्रा, उसमें टाइटल वेव्स यहाँ बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप इसको नक्शे में देखोगे तो बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। तो शिव जी तो इससे भी कितने बड़े हैं। इतने बड़े शिव जी को डिफेंड करने की हमें क्या जरूरत है? वो खुद नहीं कर सकते कुछ बड़ी। जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई कुछ कह रहा है ना, तो मे बी ही इज गेटिंग अ किक आउट ऑफ दैट। उनको उनकी किक मिलने दो। तो भैया तेरे को जो अच्छा लगता है, तेरी मर्जी है, तेरी सोच है। हम किसी की सोच पर काबू नहीं लगा सकते, किसी की सोच पर विराम नहीं लगा सकते। हमारा रिएक्शन तो हमारे हाथ में। वो रिएक्शन ऐसा है कि आप स्माइल करो, बस
बिकॉज वो शायद आपको इंस्टिगेट करना चाहते हैं। आप अगर इंस्टिगेट हो जाते हो तो जीता कौन? तो बात इतनी सिंपल सी बात है, आप इंस्टिगेट हो ही मत। अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है, उंगली कर रहा है ऐसी, आप बोलो भैया तेरी जो मर्जी तू सोच ले, हमारे शिव हमारे हैं ना, तुझे जैसा सोचना है तू सोच ले। हमें भगवान को डिफेंड करने की जरूरत थोड़ी, भगवान तो हमारे को डिफेंड करने के लिए है। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, हमें उन्हें डिफेंड नहीं करना चाहिए। Thank you. And so one question for Satyam, that was it how important it is to show that righteousness that you show, that your character, the positive one, is that more comfortable, uncomfortable, or is it more heroic? Like showing righteousness, is it more comfortable or is it more heroic? Making the guy like is. शोइंग राइटियसनेस इज वेरी इजी। हमें लगता है कि जो राइट है वो यही करेगा, लेकिन लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट तो होता नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। तो हर एक का मतलब पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो आई थिंक दोनों दिखाना बेटर है कि दोनों तरह के शेड्स होते हैं। एट द क्रूशियल मोमेंट वो किस पे एक्ट करता है, दैट इज व्हाट डिफाइंस अ पर्सन। क्योंकि हर एक के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी है, पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, लेकिन जब क्रूशियल मोमेंट आता है तब आप क्या करते हो? एग्जाम से पहले आप सोच के गए कि मैं चीटिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं लिख के गया हूँ, लेकिन क्या एग्जाम के टाइम में आपने चीटिंग करी क्या नहीं करी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हर एक के अंदर वो पॉजिटिव वीकनेसेस हैं। I'm Samiksha, book blogger, and I have a question कि आपको इंस्पायर कौन से ऑथर्स ने किया या बुक्स कौन से बुक्स पढ़ के आप आई वो आई वाज इन कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग माय फर्स्ट बुक। तो स्टार्ट किया तो हैरी पॉटर से ही किया, तो आई थिंक दैट वाज मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। फिर उसके बाद में अमीश की बुक है, देवदत्त पटनायक जी की बुक है, चित्रा बैनर्जी जी की बुक है, इन लोगों की बुक्स काफ़ी अच्छी है। तो माइथोलॉजी में उसकी वजह से इंटरेस्ट है। गुरचरण दास की डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स इज दैट। तो ये सब बुक्स हैं मतलब जो मैं पढ़ता हूँ। Ashwini, and I'm a book blogger and also an aspiring writer. So my first question is for Satyam sir. So with a full-time job, when you decided to write the first book, I mean there would be a lot of like, बहुत सारे blogs आएंगे, what should I do, or like having the right access to all the writing resources and everything like characterization and all that. So when you first started writing the book, how did your writing process look like, or what advice would you give to others, like who are also aspiring to write with a full-time job? अरे उसका बहुत सिंपल आंसर है, जो नाइकी का लोगो है, जस्ट डू इट। आप उठाइए और आप लिख दीजिए। आप मेंटल टारगेट रखिए कि लिखना, मुझे एक चैप्टर लिखना है, आप एक चैप्टर लिख। आपकी स्टोरी अगर अच्छी लग रही है ना आपको, धीरे धीरे वो फ्लो आता जाता है और आप बहुत जल्दी लिख दोगे। और आपकी स्टोरी में अगर आपको डाउट्स हैं तो स्टोरी सोचना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले स्टोरी होनी चाहिए कुछ, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। लेकिन आप लिखिए। मुझे जब मैंने फर्स्ट बुक लिखी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लिख सकता हूँ। मैंने रितेश मिश्रा सर को अपना पहला ड्राफ्ट दिया था, तो डर लग रहा था कि सर कहीं मारेंगे मुझे कि क्या पढ़ा दिया मुझे। लेकिन सर ने अप्रिशिएट किया तो मतलब वहाँ से हमें मिला। फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत ख़राब था, मतलब आपको वो बहुत ख़राब था, इंग्लिश बहुत ख़राब थी। लेकिन ये सब पब्लिशिंग जर्नी में आपका होगा और आपके पब्लिशर ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं अच्छा, तो वो सब इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्टोरी होनी चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखो, और लिखना एक बहुत अच्छी सेटिस्फाइंग चीज़ है। तरुण ने भी स्टार्टिंग में कहा कि लिखना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब लिखने से आपका एक जो क्रिएटिव जोन, आपका एक जो क्लिक होता है ना, वो आपको एक तो दुनिया की जो एक्स्ट्रा न्यूसेंस है, जो अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, वो भुला देता है कुछ टाइम के लिए। आपको लगता है कि चलो मेरे कैरेक्टर की इतनी प्रॉब्लम्स है तो मेरी तो कमी है। तो हाँ, तो इसलिए आई रियली से कि मतलब अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ आप लिखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। That was a good one. मेरे character की भी problem है। Then everyone wants to know, what are your favorite authors or favorite books apart from Satyam sir's? Not directors. Of course, मैं वाल्मीकि को बहुत हाईलाइट करता हूँ। वाल्मीकि ने एक आम आदमी की कहानी लिखी, उसने भगवान की कहानी नहीं लिखी। वाल्मीकि ने रामायण जो लिखी है संस्कृत, अगर आप वो पढ़ेंगे ना, रामचंद्र भगवान नहीं है उसमें, भगवान चंद्र बने हैं तुलसीदास जी के द्वारा। उन्होंने उसको बड़ा ग्लॉसी कर दिया। जब श्री रामचरितमानस लिखी गई तो वो भगवान बने। आप अगर वाल्मीकि रामायण के कुछ भी अध्याय पढ़ सकेंगे तो आपको लगेगा कि
इसमें तो कई जगह ऐसा लिखा है कि रामचंद्र जी लड़ाई में बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाते थे, कई जगह तो उनके कवच भी टूट गए थे, लेकिन हम फिल्मों में वैसा नहीं दिखाते हैं। अगर तो उन्होंने बहुत रियलिस्टिक किताब, एक उनको मैं मानता हूँ, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे कंप्लीट स्क्रीन प्ले वही है, सब कहानियां उसमें आ जाती हैं, सब सिचुएशंस उसमें आ जाती हैं। मॉडर्न राइटर्स में मुझे एक, अब वो अच्छा लिख नहीं रहे हैं तो अब क्या बुरा लगता है मुझे बड़ा, खालिद हुसैनी एक राइटर, इफ यू गाइस नो, उन्होंने एक किताब लिखी थी द काइट रनर। जितना क्या कहें उसे, जितना मुझे इंटरनल टर्मोइल वो किताब पढ़कर हुआ, उतना मारियो पुजो की गॉडफादर पढ़ के भी नहीं हुआ, बिकॉज गॉडफादर वॉज द स्टोरी ऑफ कोलियोनी फैमिली। वो गैंगस्टर्स के बारे में लिखना एक बारी तो अलग है, लेकिन एक ऐसी कहानी बताना एक, बिकॉज हम लोग जानते नहीं, दीज आर आयरन क्लैड कंट्रीज, अफगानिस्तान, रोमानिया, हम इनके बारे में ज़्यादा, नॉर्थ कोरिया, हम ज़्यादा जानते नहीं। ऐसी जगह के बारे में एक कहानी लिखना और फिर उस किताब का अगर लैंडस्केप देखें, अफगानिस्तान से शुरू होकर यूएसए तक जाती है और वापस अफगानिस्तान आती है, और जो उसने जिसने पढ़ी है उसको मालूम है कि वो किताब क्या है। मॉडर्न टाइम में वो किताब, और एक और राइटर है, वो भी अब अच्छा नहीं लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, पहले बड़ा अच्छा लिख रहे थे, मैं नाम बताता हूँ उनका। उनकी शुरुआत की किताब थी कृष्णा की और रोजाबल लाइन्स। अगर जो भी यहाँ किताबों से जुड़े लोग हैं, चाणक्य स्टार्ट्स तीसरे नंबर पर आए थे, वो भी ठीक थी किताब, अच्छी थी। उसके बाद में फिर मुझे नहीं, अब मेरी अगर उस कोई कंप्लेंट है कि अब आप जो है यू आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं लेना चाहिए। आप समय लीजिए, 4-5 साल जैसे इन्होंने लिया, इन्होंने पहली किताब 4 साल 5 साल पहले लिखी, मतलब पब्लिश करवाई थी, उसके बाद समय लिया। इसका मतलब कि राइटिंग भी कुकिंग की तरह होती है, सहज पके सो मीठा। तो आप अगर ऐसे तुरंत हर साल निकालेंगे तो मजा नहीं। Good evening, sir. So my first question is for Satyam. My first question is for Satyam, sir. My name is Ronnie. I am also a book blogger, fiction. Sir, so in your writing process, how do you deal with writer's block? Any tips and tricks for upcoming writers? अगर राइटर्स ब्लॉक आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा और बुक पढ़ना शुरू करिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम कुछ और नहीं देखना चाहते, कि हम टीवी नहीं देखना चाहते, हम कुछ और, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब राइटर्स ब्लॉक आता है तो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट रीडिंग मेनी अदर बुक्स। तो वहाँ से कहीं ना कहीं से कोई एक आइडिया आता है, देन यू आर एबल टू मूव अहेड। Thank you, sir. So my next question is to Tarun, sir. Sir, how does reading books, especially fiction books, helps you as an artist in your work? रोनी, आपने ना बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। एक्टर्स की प्रिपरेशन होती है एक, तो जब हम लोग कोई रोल प्रिपेयर करते हैं, हम सबकी पर्सनालिटीज, मेरी अकेले की, इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज दैट वी हैव विटनेस्ड थ्रू द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। हम सब में हमारा हिंदी का टीचर, हमारी इंग्लिश की टीचर, हमारे मम्मी, हमारे पापा, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, सब होते हैं। उन सब से हम किसी ना किसी से थोड़ी थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स लेते हैं। अब क्या होता है कि कोई आदमी, मुझे मान लीजिए कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला, अब उस कैरेक्टर के लिए मुझे जब कैरेक्टराइजेशन बनानी है तो मैं अमिताभ बच्चन से भी इंस्पायर्ड हो सकता हूँ। उसको सब जानते हैं, अमिताभ जी को सब जानते हैं, तो लोग कहेंगे अमिताभ की कॉपी कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ। शोले फिल्म में एक डायलॉग है, ओ कालिया, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार। अब ये डाकू बोल रहा है, तो हमें लगता है डाकू ऐसे बात करते हैं। अमजद खान जी के, लेट अमजद खान जी के सगे बड़े भाई इम्तियाज खान जी, वो बता रहे थे कि हमारा एक धोबी था घर के पीछे, वो अपनी वाइफ को ऐसे बुलाता है, ए धोलिया, कितना कपड़ा है रे। वहां से आप देखिए एक्टर ने कहा, अमजद खान एक्टर है, अब समझदार,
उसने वो टोन पकड़ा धोबी का और उसको कहाँ डाला, अरे ओ सांभा, सेम कहता वही सेम टोन मेरे भाई ने वहां पकड़ा। लेकिन पब्लिक उस धोबी को नहीं जानती है, तो पब्लिक को लगता है कि ये अपना बनाया है। तो सर वैसे ही ये तो हो गए कैरेक्टर्स जो हमने अपनी लाइफ में देखे। कई बार कैसा होता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर आपके सामने आ जाता है जो आपने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, तो एक्टर को कहा जाता है तब यूज योर इमेजिनेशन। अब वो इमेजिनेशन इन किताबों के जरिए हमारी जो है आसान हो जाती है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो सोचा पिछले 4 साल में, उसको इन्होंने ये 250-300-400 पेज में डाल दिया। हम 10 दिन में पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, कितना आसान है हमारे लिए। ऐसे ही और राइटर्स की भी अगर हम सोच अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो फिर मुझे याद आ जाता है यार यहाँ पर ना मैं वो वाला कैरेक्टर पकड़ता हूँ, वहाँ पर वो वाला कैरेक्टर पकड़ता हूँ, एंड देन एक ही परफॉर्मेंस में मैं अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखा सकता हूँ जब मौका आता है। दिस इज व्हाट। I am a book blogger, book reviewer, as well as a writer. My first question is for Mr. Satyam. First of all the best for the book. There is a question that I am lost in since quite a long time. What is it with IITs and engineers becoming successful writers? वहाँ पे कुछ बुट्टी मिलाते हैं person becoming successful writer. I am an engineer also and I love writing, but I still don't have the answer for that question. That is why I am asking. वो सीट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर भी आप वो कंप्लीट करके ये बन जाते हो। हम लोग बोलते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं ना वो चंगेज खान की तरह है, बस निकल जाते हैं और बस कॉन्कर करना है और कुछ नहीं करना, बस जहाँ घुस जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। आई थिंक इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है कि बस हार्ड वर्क करो, तो आई थिंक जहाँ भी आप हार्ड वर्क करोगे तो वहाँ सक्सेस करोगे। Thank you, thank you. And a simple question for you. Playing God, and that too for 15 times, is quite a actually challenging thing. And how does this hamper your day-to-day activities? ऐसा कभी होता है कि कोई आके आपके पैर पड़ गए कि भैया आप सच में भगवान हो? निपुण जी इसमें हैम्पर कहाँ से हुआ? ये तो बड़ी आपको because आपकी मैं सवाल समझ गया। ये तो बड़ी किस्मत की बात है। हम सब बच्चा पैदा होते ही रोना क्यों शुरू करता है? He wants your attention. हम सब अटेंशन चाहते हैं इस दुनिया में, अकेले कौन रहना चाहते हैं? एक्टर बनते क्यों हैं? रिकग्निशन के लिए। अगर हमारे को मुश्किल से 4 लोग पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं हमारे एफर्ट को, there are more than 5,000 actors, there are more than 50 actors who have portrayed Mahadev in so many years, but एक मोहित रैना को छोड़कर मुझे छोड़ के लोग किसी का नाम नहीं जानते। ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है कि हमारे सुप्रीम गॉड का रोल मुझे बार बार करने को मिलता है। True. और उसके बाद लोग मुझे उसकी वजह से इज्जत देते हैं, तो मैं उस इज्जत को स्वीकारूंगा या शन करूंगा? अभी तो नहीं करेंगे। तो मेरी लाइफ में मैं खाना खा रहा होता हूँ, मैं कुछ भी जरूरी से जरूरी काम कर रहा होता हूँ, मैं वो सब छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ आओ फोटो आओ, तुम्हें मेरे साथ गले लगना है, गले लगना। मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरा जो शो है हमारे राम, हम आशुतोष राणा भैया के साथ में ये शो करता हूँ। हम 370 के करीब मंचन कर चुके हैं। इसके भारत का इतिहास का सबसे बड़ा शो है। हम लोगों को अभी सिर्फ 22 महीने हुए हैं ये शो करते हैं। अभी 20th को भी है? जी 20 और 21 तारीख को एनसीपीए में 4 शोज हैं हमारे। अगले दिन 2 शो राजकोट में भी हैं सुबह 20 तारीख। तो पॉइंट ये कह रहा हूँ मैं आपको, वहाँ जब शो खत्म होता है हम लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर हम जब लोगों से मिलते हैं और लोग, अब क्योंकि मैं शिव जी के अटायर में होता हूँ तो मैं नहीं होता हूँ, उनको शिव जी दिख रहे हैं। कई लोग, अब किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसकी मम्मी को कैंसर है, किसी की लाइफ में उसको खुद को कैंसर है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर का कुछ काम अटका हुआ, किसी के ऊपर इनकम टैक्स वालों ने रेट डाल दी है। कई किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं अपने सामने भगवान को देखकर, वो रोना शुरू कर देते हैं तुरंत के तुरंत। आप यकीन मानिए मैं भी उनके साथ ही रोता हूँ, मैं उनको चुप नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता तो है नहीं कि मैं उन लोगों को चुप कराऊं या उनकी कोई परेशानी सॉल्व कर दूं। I get so overwhelmed by their reaction to my attire, and I also start. I am a simple person. भगवान ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, माता पिता का आशीर्वाद रहा, मेरे गुरुओं का रहा, तो मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है। बड़ी मुश्किल से मिली है सर, हाथ जोड़ के पाँव भगवान के पड़े कि मुझे भी ये रोल दो, अच्छा कोई तो मिला है, तो उसको पूरी हम्बल होके हाथ जोड़ के स्वीकारता हूँ और हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। हैम्पर कभी नहीं होता। तो आपको ये बिकॉज यू आर प्लेइंग गॉड, तो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आपको वैसा पोर्ट्रे करना पड़ता है, मतलब कभी कुछ मस्ती
करना है, मतलब कंट्रोवर्सी में आ सकते कभी ऐसा कि भाई ये गॉड प्ले करते हैं और ये ऐसे रियल लाइफ में बड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि मैं ना तो फ्लर्ट कर सकता हूँ वैसे ही शादीशुदा आदमी को। अच्छा दूसरे क्या है, सिर्फ अब मैं बिल्डिंग में भी नीचे कभी कभी शाम को वॉक करने जाता हूँ तो लोग ही बनी पाँव छू रहे होते हैं कि मैं क्या बोलूँ भाई, तुम्हारा तो पड़ोसी हूँ, तुम लोग तो सब उम्र के लोग आते हैं तो उनको वो दिखता है। सिर्फ मेरी वाइफ है जो मुझे सही जगह रखती है, सर वो सबके लिए वो सेट करके रखती है, घर में वो सब नहीं चलता, बाकी सब जगह मैं थैंक यू सर। चलिए हो गया। This name, the fallen god, it's like touches your heart, you know, when you know. So what does it signify? The name. I think this book is more about war between असुर एंड देवास, गॉड्स और डीमंस के बीच में वॉर है। लेकिन क्या होता है ना, जो रियल वॉर होता है उससे पहले गॉड्स पहले आपस में ही लड़ रहे होते हैं। आई थिंक दिस स्टोरी इज मोर ऑफ दैट कि गॉड्स के आपस में लड़ाई है, देन विच गॉड विल फॉल। तो वो स्टोरी इस बुक में है, दैट इज फ्रॉम वेयर द नेम हैज कम। तो थोड़ा मैंने आपको थोड़ा लीक कर दिया है मतलब स्टोरी थोड़ा जरूरी भी है। So you mean to say Shiva is considered as the fallen god? No, God Shiva. you have to read the book. There are other gods also in the book. Is that Madhav? तो छाया ही रहेगा, पूरा ही है। तो that is my favorite character I think, and you will also like कि मतलब कृष्ण की एक तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करी है मैंने कि डिफरेंट सिचुएशन में अगर कृष्ण आएंगे तो क्या होएगा। तो that is there बस। लेकिन ये जो हम बोलते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं, कभी कलयुग खत्म होने जा रहा है, तो इसके रिलेटेड है ये कलयुग या सतयुग या? This story is set in द्वापर युग। तो द्वापर युग की स्टोरी है तो महाभारत इक्विवेलेंट टाइप्स है। ये कलयुग की नहीं है, प्रेजेंट टाइम्स की नहीं है, ये द्वापर युग की स्टोरी। Thank you so much. It's a doubt. आपने कहा I caught one word that when you said कि डिफेंड मत करो जब कोई भगवान को खराब होता है, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें सालों से सिखाया जाता है सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना, XYZ whatever। हम डिफेंड नहीं करेंगे, आपने बोला, बट हमारे हर भगवान के हाथ में, जब ये सब एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, हर एक भगवान के हाथ में एक शस्त्र भी। सो वाई यू सेड कि डिफेंड नहीं करना, बिकॉज सनातन वो है जो इसका न जिसका ना आदि है ना अंत है। हम कभी किसी को डिफेंड नहीं करते हैं, शायद ये तो रीज़न नहीं है कि हम पे इतना निगेटिविटी किया जाता है। हम भगवान को कभी भी ये नहीं बताते कि भगवान वो हैं जो भू, गगन, वायु, अग्नि, नीर सबको कंट्रोल कर सकते हैं। देवता वो है जिनको देने के लिए सिर्फ एक सीमित जिसे है। तो प्रोबेबली हम डिफेंड नहीं करते हैं बिकॉज सनातन इज प्योर साइंटिफिक। ओनली क्वेश्चन इज, आपने कहा डिफेंड नहीं करना, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। सर साइंटिफिक सिर्फ सनातन नहीं है। आप अगर हदीस पढ़ेंगे तो बड़ी जबरदस्त साइंटिफिक बातें वहां भी लिखी है। हलाल का मीट क्यों खाते हैं मालूम है? थोड़ी बात, तो हलाल इसलिए खाया जाता है सर, द फंक्शन ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू एवरी सेल। वो क्या करते हैं, हल्का सा कट लगा देते हैं so that the whole blood gets out of the body of that animal which they are going to eat। वो जानवर इसलिए खाते थे क्योंकि वहाँ पर रेत होती थी, खेतीबाड़ी करने के लिए कोई और उनके पास में तरीका नहीं था, वहाँ खाया जाता था। अब तो शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, मैं उनकी बात करूँ। तो उन्होंने ये ढूंढा कि हलाल खाओ जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज बॉडी से निकल जाए। तो साइंटिफिक तो वो भी है सर, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सनातन में हर एक भगवान के हाथ में एक शस्त्र है, तो वो खुद को डिफेंड करेंगे, हमारे को शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है। तीसरी बात, आपने बोला कि क्योंकि हम लोग डिफेंड नहीं करते हैं इस वजह से ही हम पर आतताइयों ने आक्रमण किए इन द पास्ट। मे बी दिस इज व्हाट अभी हम डिफेंड नहीं करते, यू सेड। सर पहले तो हमने किया है, इसीलिए आज नहीं, हमने कभी भी डिफेंड नहीं किया सर, हमने कभी भी डिफेंड नहीं किया है। हमारे यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन होती थी उस वजह से इन्वेडर्स आते थे। किसी के यहाँ पानी नहीं है, आप सोचिए अफगानिस्तान में पानी कम मिलता था, उधर के जहाँ रेगिस्तान के इलाके होते हैं वहाँ पानी कम होता है, वो पानी की तलाश में यहाँ आते थे। उधर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, वो लोग यहाँ आते थे। हम लोग यहाँ पर लकी हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश और श्रीलंका की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज़्यादा है।
पूरी दुनिया में जहाँ सभ्यता जब से स्टार्ट हुई है, जहाँ पर पीने का पानी मिलता है वहीं इंसान पनपता है। आप सोचिए कनाडा इतना बड़ा, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, इसलिए लोग इतने नहीं रहते हैं वहाँ पर। दे आर नॉट हैबिटेबल प्लेसेस। तो जो हैबिटेबल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं रहने के लिए। लेकिन ये वही है कि मैं बस में पहले बैठ गया, मैंने सीट पे बस्ता रख दिया, अब तो मेरी सीट हो गई और कोई आएगा तो तुझे बैठने नहीं दूंगा। लेकिन वो लोग जब आते थे उनके पास मजबूरी में और कोई तरीका नहीं रहता था, आके लड़ाई करते थे। यहाँ पर सारे संघर्ष एक्चुअली में खाने पानी के लिए हुए। कोई भी संघर्ष इसलिए नहीं हुआ कि हमारे को तुम्हारे से जेवर चाहिए, वो सब चीजें बाद में आती हैं। लेकिन पहला संघर्ष एक आदमी अपने घर से इसलिए निकलता है क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए नहीं होता है, पानी पीने के लिए नहीं होता है। ये बात हमने नहीं, किसी ने भी नहीं समझी। तो पॉइंट ये है सर कि दूसरी बात, अब आज के ऊपर आते हैं, सनातन के ऊपर। सनातन में हमारे गॉड्स में श्री कृष्ण ने कहा है जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो युद्ध करो। अगर एक आदमी ने हमारे को चलते हुए फप्ती कस दी हमारे भगवान के ऊपर, तो वो इतनी बड़ी वजह हो गई कि युद्ध कर ले। आप सोचकर देखिए। लेकिन अगर वही आदमी आकर आपके घर के ऊपर अटैक करता है तो हमारे सनातन में हर तरह से उसकी सुविधा भी है और उसकी इजाजत भी है कि जाइए और फोड़ कर रख दीजिए उसको। सनातन डरपोक नहीं बनाता आपको। सहिष्णु होने का मतलब डरपोक होना नहीं है। सहिष्णु होने का मतलब है चूज योर बैटल्स वेरी वाइजली। हमें अपने बैटल्स को चूज करना चाहिए सर। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर रिएक्ट करना शुरू करेंगे, वी आर पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़ प्लस पीपल, अगर हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो लाइफ कब जिएंगे? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, हम लोग बड़े आराम से बोल देते हैं यार वो कंट्री में, सिंगापुर में तो इतनी पॉल्यूशन नहीं है, न्यूजीलैंड में तो इतना, ये 60-70 मलाड से छोटे तो ये कंट्रीज हैं सर। मलाड को भेजूं सिर्फ मैं रहने के लिए ना, अगर न्यूजीलैंड या सिंगापुर में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की क्या हालत हो जाएगी। सिर्फ मलाड और गोरेगांव के लोगों को भेज दो वहाँ पर, सिर्फ 2 सबब के, देख लूंगा। उनको रोज खाना खिलाना, उनका सब ठिकाने लगाना आसान नहीं होता। तो ये हम लोगों की, हमारा रिलीजन बड़ा कमाल का है जो हमारे को इतने बड़े बड़े लोगों के थ्रू हमें ये जानने को मिला कि when to fight। आप सोचिए श्री कृष्ण एक बार दरबार में गए थे उसके कौरवों के, बोले लास्ट में कि 5 गांव दे दे भाई, गए थे ना। उसने वहां पर दुर्योधन ने उसको अटैक करने की कोशिश की कि बंदी बना लो इसको। ये सोचे बगैर दोनों संधि थे, आपको मालूम है? दुर्योधन डॉटर वॉज मैरिड टू कृष्ण सन सांब। सांब की पत्नी थी दुर्योधन की बेटी। उसको इतनी अकल नहीं है कि अपने समधी के ऊपर अटैक कर रहा है। द पॉइंट इज दिस कि बेअकल आदमी है ना सर, तभी तो आज उसका नाम सुयोधन था। डू यू गाइस नो दिस? उसका नाम सुयोधन था, लिख के किताबों में सब जगह मिटाया गया कि सुयोधन ही दुर्योधन करो। सुशासन नाम है, दुशासन करो। क्यों किया गया उनके नाम के साथ? उनके नाम तक को खराब कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि हरकतें बेवकूफों वाली थी। बेवकूफ आदमी के साथ में हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए तब तक जब तक कि वो बिल्कुल हमारे अंग पर ना आ जाए। अंग पर आ गया तो फिर देखो क्या किया कृष्ण जी ने, उनका पूरा नस्ल खराब कर दी ना। 101 बच्चे जितने भी 100 थे सबके सब मार दिए ना। तो हमारा सनातन ये। So I am really thankful to all of you for coming for the book launch. And so many friends from my IIT, from my IRS, they have come, and so many bloggers and all have joined us. So I thank you all for coming. It's a weekday, so double thanks to all of you for taking out time. ऑफिस से जल्दी भाग के आए हैं, I am sure. और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं तरुण को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सबसे जब मैंने तरुण से बस एक बार पूछा कि तरुण विल यू कम फॉर द लॉन्च, जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे, मतलब पीछे उन्होंने डेट बोली और वो आ गए। मतलब तो मतलब इनसे अच्छी छवि और इनसे अच्छा बुक लॉन्च करने के लिए मेरे को लगता है कोई मिल नहीं सकता था, क्योंकि मेरी बुक शिव जी के ऊपर काफ़ी बेस्ड है। और हम लोग क्या है कि जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं ना, तो जैसे अब रामचंद्र जी हैं तो अरुण गोविल जी को इमेजिन करते हैं, शिव जी हैं तो भाई कोई इमेजिनेशन हो ही जाता है। तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू यू तरुण फॉर कमिंग। सो आई थैंक्स लीड स्टार्ट फॉर पब्लिशिंग माई बुक्स, फॉर माई क्रिएटिविटी। थैंक यू। So I thank my mother, my wife, my kids, my in-laws, everyone. So thank you all for coming. Please, Bahar, I think snacks Yeah, we time have for also arranged the refreshments, but please get your copy signed with the author. And the audience is waiting for the selfie also. Please. बाकी 3 सत्यम दिए थे, आज से वो देने से पहले मैंने खरीद लिया। आप आए फिर मिलते हैं। Sir, it was a pleasure. हाँ
टाइटल वेव्स के द्वारा बुक लॉन्च इवेंट बहुत ही अच्छा रहा ऑफ द फॉलन गॉड. स्पीकर्स वर वेरी नाइस. I will definitely recommend the people to read this book. Very nice event. And भगवान शिव के बारे में इस बुक में बोला गया है जो हमारे सनातन धर्म को प्रमोट करता है. So I'll suggest everyone to read this book. Thank you very much. बहुत ही अमेजिंग बुक लॉन्च था और उनको सत्यम जी को भी एंड तरुण सर को सुनना मतलब इट वॉज़ अ ट्रीट लिसनिंग टू देम. एंड बहुत सारा ज्ञान भी था और बहुत सारी खूबसूरत रिफ्लेक्शंस भी थे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड द बुक नाउ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अमेजिंग. तरुण जी की और इनका जी सत्यम जी का बहुत अच्छा बोलने का रहा और विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द हिज. थैंक यू. I was first of all I was very excited for this book launch क्योंकि मुझे mythological fiction बहुत पसंद है. एंड जैसे ही मुझे पता चला कि इट्स अ बिट डिफरेंट. माधव एक कैरेक्टर है विच हैज़ द नॉटीनेस एंड द ब्यूटी ऑफ कृष्णा एंड फिर महादेव का कैरेक्टर है. एंड ये बुक लॉन्च स्वयं हमारे चहीते ऑन स्क्रीन महादेव ने लॉन्च किया. सो इससे बड़ी एक्साइटमेंट और कुछ नहीं हो सकती. आई एम सो एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड ऑब्वियसली आई लव्ड अटेंडिंग द बुक लॉन्च. थैंक यू. It was a wonderful experience. It was a wonderful experience. We met an author and our chiefess, Mr. Tarun. It's a really great thing. Our host Harry did a wonderful job, and I'm looking forward to read this book. Really excited. Thank you so much. ये जो बुक है द फॉलन गॉड, ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका ये लग रहा है मुझे. तो ये मैं पढ़ूंगा और इसका रिव्यू दूंगा. तब अभी ये ट्रायलॉजी है तो इसका पहले का पार्ट भी मुझे पढ़ना पड़ेगा फॉर द कंटिन्यूएशन. बुक लॉन्च काफ़ी अच्छा था. अपकमिंग राइटर्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन दिया. सत्यम जी ने, तरुण जी ने जो फीडबैक्स दिए, जो सवालों के जवाब दिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. और मैं अपनी तरफ से तहे दिल से ऑल द बेस्ट कहूँगा सत्यम जी को इस बुक के सक्सेस के लिए. थैंक यू सो मच. I attended this event today. Ari had. What was the name? Can we take it again? So I attended this event today, and it was a great experience to learn about mythology. And I would love to read this book because I think we Gen Zs really need to understand what our mythology is about. And thank you, Harry, for inviting me. It was a very deep, amazing conversation. Thank you. ओके, बहुत अच्छा इवेंट था. सो बेसिकली ये बुक के कवर में यू कैन सी देयर इज़ वन ड्रैगन. सो बेसिकली हमारे इंडियन मैथोलॉजी में देयर इज़ ओनली वन ड्रैगन कैरेक्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बुक, जिसकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इस बुक में. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक. बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सत्यम सर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बोलो. हाँ, सत्यम को लिखने का पहले से ही बहुत शौक है. बट वन डे ही सेड कि आई वांट टू राइट अ बुक व्हेन वी वर देयर एट अ टेम्पल. सो आई सेड ओके, गो ऑन. एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि व्हेन ही यूज्ड टू राइट देन ही यूज्ड टू शो द ड्राफ्ट्स. बट नाउ आई एम ऑल्सो लाइकिंग कि और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और उनको भी उनकी किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है. जस्ट आई विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. रेडी? पहले क्या बोलना है? पहले फॉलन गॉड. पहले फॉलन गॉड और फिर हर. 5, 6, 7. थैंक यू. जल्दी आ. विजुअल फोटो तुम ले लो फोटो कर रहा है और आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है तो मुझे बहुत खुशी है. मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उसको कि भगवान खूब उसको तरक्की दे और उसका साया ऊपर बनाए रखे. अरे मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा.
So sweet, so sweet. तरुण क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा भी मिली और ये बुक लॉन्च पे भी आप पहुँचे, कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत, विलक्षण, बहुत ही मर्मस्पर्शी। मेरा भाई है सत्यम। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से अपने विचार जो हैं एक किताब में ढाल के उनको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और राइटर तो वैसे भी एक बड़ी कमाल की प्रजाति होती है। कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहावत है कि शो मी अ फैमिली ऑफ रीडर्स एंड आई विल शो यू हु लीड्स द वर्ल्ड। यानी कि आप दुनिया में तरक्की तभी कर सकते हो या लीडर बनना या कुछ भी बड़ा काम तभी कर सकते हो जब आप पढ़ते हो। तो कोई पढ़ता तभी है जब कोई उसको पहले लिखता है। तो मेरा भाई सत्यम श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी है, इतना अच्छे से इसको लॉन्च किया है। और मैं ये चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें, जो भी मुझे जानते हैं वो प्लीज़ इसको पढ़ें और जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी इसको पढ़ें और इस किताब को खूब प्रोत्साहन दें। सर आजकल इस तरीके की किताबें बहुत कम हो रही हैं, क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें कितनी बाहर आना चाहिए जो हमारे न्यू जनरेशन में उन तक पहुँचना कितना ज़रूरी है? देखिए ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है। अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर भूल जाएंगे तो हवा में उड़ जाएंगे और हवा में जो उड़ते हैं वो जब नीचे गिरते हैं तो बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए और इस तरह की जो किताबें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी संस्कृति के लिए। मैं उस एरा में बड़ा हुआ, उस समय में बड़ा हुआ जब अमर चित्रकथा का चलन होता था। हम सब अमर चित्रकथा वाले बच्चे हैं, तो हम बड़े लकी थे कि हमें वो सब पढ़ने को मिला। आज जो भी बोल पाता हूँ, काम कर पाता हूँ या जो कुछ भी मुझे लाइफ में मिल रहा है उसमें उन किताबों का और उस समय की उस प्रथा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम किताबें पढ़ते थे। आजकल के बच्चे शायद उतना नहीं पढ़ते हैं, तो कोशिश तो हमें करते रहना होगा। देखिए हमारा काम है हमेशा ये कोशिश करें और फिर उस कोशिश में हम कितने कामयाब होते हैं ये भगवान डिसाइड करें। थैंक यू सर। गॉड द फॉलन गॉड जो बुक है ये देव असुर कथा की सेकंड बुक है। पहली बुक थी द विल्डर ऑफ द त्रिशूल। फॉलन गॉड को लिखने में मुझे 4 साल लग गए लगभग, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टाइम दिया मैंने, क्योंकि दिल के बहुत क्लोज़ है। ये स्टोरी जो है मतलब हमारे एक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है इंद्र और वृत्रासुर की, जो बहुत हमारे रीडर्स को नहीं पता है। तो मेरा इस बुक के थ्रू मेरा यही सोच है कि ये रीडर्स तक पहुँचे, क्योंकि ये स्टोरी जानना ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ रामायण और महाभारत में ही रह जाते हैं, जबकि हमारी माइथोलॉजी में बहुत स्टोरीज़ हैं। तो एक बुक लिखने का एक पर्पस यही था मेरा कि ये स्टोरी सब तक पहुँचे और रीडर अप्रिशिएट करें कि मतलब जो देव असुर को वो सिंपल तरह से देखते हैं वो इतना सिंपल मुद्दा नहीं है। देव और असुर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत उसमें मतलब कि लोग क्या चॉइसेस करते हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उससे वो अप्रिशिएट करें। तो ये बुक लिखने का वही पर्पस है मेरा। तो आई होप यंग रीडर्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें ड्रामा है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, लव है, सब कुछ है। तो आई होप द रीडर लाइक इट एंड दे एंजॉय दिस बुक। कितना समय लगे इस बुक को लिखने में लगभग 4 साल लगे। पहली बुक 2021 में आई थी, अभी ये दूसरी बुक 2025 में आई है। तो 4 साल लग गए लगभग लिखने में, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च और मिडिल वाला पार्ट काफ़ी टफ होता है लिखने के लिए। तो आई वांटेड द स्टोरी जो हो वो अच्छी लगे, जो लोगों को ये ना लगे कि ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं, एक फ्लो रहे, कैरेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा हो, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा। बट आई होप कि एंड प्रोडक्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा है। तो जाएंगे किस तरीके एक्सपीरियंस रहा, ये कुछ अलग हटके रहा इस बार? तो ये जो किताब है ये सत्यम की सीक्वल किताब है। पहली किताब के बाद ये सेकंड किताब इन्होंने रिलीज़ की है। इस किताब को जिस तरीके से लिखा गया है वो ही बहुत खूबसूरत है, बिकॉज़ आज की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइथोलॉजी में हमने क्या क्या लिखा हुआ है। सो सत्यम का ये एक अटेम्प्ट है कि ये किताब के जो मैसेजेस हैं वो हमारी आज जनरेशन तक पहुँचे। सो इन अ वेरी मॉडर्न स्टाइल उन्होंने ये किताब लिखी है, ताकि जेनजी जो जिन्हें हम कहते हैं वो भी इसे पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसी स्टोरीज़ का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल अगर हम हमारे बच्चों को भी पूछते हैं तो सुपरमैन, एनी सुपर हीरोज़ यू टॉक अबाउट, they know everyone, but no one knows about the real heroes which are there hidden in our history, in our mythology. So I wish a lot of success to Satyam, and I wish it reaches to the right audience. All the best. Thank you. बुक लॉन्च पे पहुंचे, कैसा लगा? हाय, ये बुक लॉन्च बहुत ही बढ़िया था। तरुण खन्ना वाज अमेजिंग होस्ट एज वेल
एंड सत्यम जी ने बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखी है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही मज़ा आ गया. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक एंड होप मेनी मोर कीप कमिंग आउट. सो थैंक यू सो मच. हाँ कोई भी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था. सबकी बातें सुनकर अच्छा लगा, इंस्पायरिंग फील हुआ, राइटिंग चालू करने का मन किया. एंड माइथोलॉजी मेरा फेवरेट नहीं था आज तक, पर अभी हो गया है. थैंक यू.